Friends, today we will know about the tariff and non-tariff barriers between two multi-dimensional countries like India and USA. In these days, the tariff and non-tariff barriers are in the worried position. Friends, both countries have been the subject of worry for the developed country in view of tariff and non-tariff barriers. What is the subject? What is the matter of tariff and non-tariff which is so much popular in today's history? Friends, tariff and non-tariff barriers are both restrictions on international trade. Tariffs are taxes imposed on imported goods, while non-tariff barriers are other regulations or measures that limit trade without using taxes. Now we will know about the tariff barriers. Tariff barriers, taxes and duties imposed on imported goods. Purpose primarily to protect domestic industries from foreign competition and to generate government revenue. And what are the types of tariff barrier? These are import duties, taxes on imported goods, export duties like taxes on exported goods, special duties based on the quantity of goods like per kilogram, per unit, etc. And variable duties based on the value of the goods like percentage of the price. And the effect is increase the price of imported goods, making them less competitive compared to domestically produced goods. Now we will know about the non-tariff goods, non-tariff barriers. We can set that trade restrictions that do not involve taxes but rather regulations, rules or other measures that make it difficult or costly to trade, like quotas, limits on the quantity of goods that can be imported or exported, import licenses, requirements to obtain a license before importing certain goods is also in the parameter of non-tariff barriers. Product standards like technical regulations that imported goods must meet before being allowed into the market. SPS, sanitary and phytosanitary measures like regulations related to health, safety and environmental standards called non-tariff barriers. Domestic content requirements, voluntary export restraints, currency controls, anti-dumping duties. And now purpose of non-tariff barriers is similar to tariffs. They aim to protect domestic industries but also to achieve other objectives like consumer protection, environmental protection or national security also. And now we should know the effect of non-tariff barriers can limit the quantity of imports, increase the cost of imports or create delays in the trade. Like main differences between tariff and non-tariff barriers. Tariff are explicit taxes, while non-tariff barriers are more implicit regulations, conditions. Price versus quantity. Tariffs primarily affect prices, while non-tariff barriers can affect both prices and quantities also. Transparency. Tariffs are generally more transparent than non-tariff barriers, which can be complex and
difficult to understand. These are the main types of tariff and non-tariff barriers which are imposed by India and USA, and for these barriers the developed countries are in the comparatively very position. Now friends, we will know all things in Hindi also. दोस्तों, वर्तमान में जो एक प्रमुख विषय उठकर सामने आया है, जो कि सर उठा रहा है, यूं कहें कि विश्व में हर रोज एक नया चर्चा का विषय बना हुआ, वो है टेरिफ एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर। फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत पहले से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक मध्यम वर्ग के तेजी से विकास के कारण दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा। इसके बावजूद अत्यधिक टेरिफ और नॉन टेरिफ बाधाओं के कारण अमेरिका का निर्यात का केवल 13वां हिस्सा भारत आता है, जबकि भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। दोस्तों, अमेरिकी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञ भारत की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, किंतु अमेरिकी कंपनियों को भारत में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें टेरिफ और गैर टेरिफ दोनों बाधाएं शामिल है। साथ ही विदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाले कई नियम भी शामिल है। भारत की औसत टेरिफ दर 13.8% है, जो विश्व की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे अधिक है। उदाहरण के तौर पर ऑटोमोबाइल पर 60% टेरिफ, मोटरसाइकिल पर 50% और मादक पेय पदार्थों पर 150% टेरिफ है। अमेरिका का लक्ष्य क्या है कि भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिए बाधाओं को खत्म करना है। इन बाधाओं में डेटा स्थानीयकरण प्रतिबंध भी शामिल है, जो वास्तव में डेटा सुरक्षा को कमजोर करते हैं और व्यापार की लागत में वृद्धि करते हैं। इसीलिए जवाबी कार्यवाही करते हुए जो ट्रंप है वो ज्यादा टेरिफ लगाने के सोच रहे हैं, ताकि उधर से रेसिप्रोकल जो है वह कम हो सके। अब अन्य बाधाओं में चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स पर मूल्य नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार उत्पादों पर प्रतिबंधात्मक शुल्क शामिल है। दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि यह टेरिफ जो है सीमा शुल्क है। बीच में आपको बताना जरूरी है कि टेरिफ क्या होता है। यह दोनों देशों के बीच में आयात और निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क है। यह व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को सुरक्षित रखने हेतु विदेशी उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक कर होता है। यह तो हुआ टेरिफ जो सामान्य कर है। अब आता है गैर टेरिफ। दोस्तों, ये सभी शुल्क जो कि आयात या निर्यात शुल्क नहीं है, वो गैर टेरिफ की श्रेणी में आता है। जैसे आयात का कोटा तय करना, सब्सिडी तय करना, तकनीकी बाधाएं उत्पन्न करना, आयात लाइसेंसिंग की बात करना, सीमा शुल्क पर माल के मूल्यांकन के लिए नियम बनाना, पूर्व शिपमेंट का इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारा आता है। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों टेरिफ और गैर टेरिफ बाधाएं क्या है हमने जान ली, लेकिन बाधाओं के प्रकार क्या है। दोस्तों, यदि हम ये जानना चाहते हैं तो गैर टेरिफ बाधाएं हैं वो बहुत तरह के, जैसे आयात टेरिफ हो गया, किसी पर जो किसी देश में आयात किए जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। दूसरा टेरिफ होता है वो निर्यात टेरिफ है, जो कि निर्यात पे लगता है। प्रत्येक आइटम पर जोड़ा जाने वाला निर्धारित शुल्क है। और मूल्यानुसार टेरिफ, जो कि सामान के मूल्य पर आधारित होता है। देश आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा बनाकर अपने स्वयं के व्यवसायों की रक्षा के लिए टेरिफ का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, टेरिफ का उपयोग सरकार के लिए पैसा कमाने के लिए भी किया जा सकता है। और दोस्तों, यह एक तरीका है अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का। लेकिन जब दोस्तों बात आती है गैर टेरिफ बाधाओं की या बैरियर्स की, तो दोस्तों वहां पर थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ जाती है कि कई नियम और प्रतिबंध गैर टेरिफ बाधाओं से मिलकर बने एक प्रकार का सामान्य प्रतिबंध या कोटा है, जहां कोई भी देश किसी भी निश्चित उत्पाद के लिए कंपनियों को केवल तभी विशिष्ट सामान बेचने की अनुमति देता है जब उसके पास टेरिफ और ट्रेड का नियम कानून कायदे हो। जैसे कि मानक कोई हो गया, या फिर ट्रेड के लिए कुछ शर्तें हो गई, या फिर ये हो कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, या जो हमने पहले आपको प्रोसेसिंग किया है माल का, शिपमेंट किया, उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद हम
आगे की प्रोसेस करेंगे, या फिर किसी भी तरह का अन्य टैक्स जो कि पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर लिया जाता है या हमारे नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर लिया जाता है, ये सारा जो है वह गैर टैरिफ बैरियर में आता है। और ये गैर टैरिफ बैरियर्स है वो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित कंट्रीज है, विकसित देश है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है इनको अपनाने में। दोस्तों आज हम ट्रेड को छोड़ दें तो राजनीतिक, सामाजिक ये भी बैरियर्स हैं। दोस्तों कई देशों के साथ हमने राजनीतिक संबंध इसलिए है कि वो हमारी टैरिफ की बातों को माने, नॉन टैरिफ बैरियर्स को माने। दोस्तों यदि भारत और अमेरिका दोनों टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से ऊपर नहीं उठते हैं तो दोस्तों विकसित देशों को इन दोनों से ही दूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके यहाँ पर नुकसान ज्यादा हो। क्योंकि दोस्तों उनके यहाँ पे सिटीजन्स को नुकसान होगा तो उनकी अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होना ही है। ऐसी स्थिति में यदि वो चाहें तो इन दोनों चीजों को सरल बनाकर, खासकर गैर टैरिफ बैरियर को, ताकि सरल बना देंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों को आसानी होगी, सहूलियत होगी व्यापार में, व्यवसाय में, ट्रेड करने में, इन चीजों में। दोस्तों माना कि टैरिफ जरूरी है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन रेसिप्रोकल मतलब कि बदले की भावना से यदि टैक्स लगाया जाए तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा, निर्यात आयात दोनों के लिए नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी काम बदले की भावना से किया जाता है तो वह अंततः पतन की ओर ले जाता है, और दोनों देश यही करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में दो देश नहीं और भी है उनके राष्ट्र, यूरोप है, चाइना है, सारे इसी में लगे हुए। दोस्तों उनको चाहिए उन दोनों देशों की वो शुरुआत करें नॉन टैरिफ बैरियर और बैरियर से ऊपर उठकर विश्व की एक समस्या को समझने की, ताकि विकसित देश उनसे जुड़कर और पुनः एक ट्रेड पॉलिसी का अनुसरण कर सके, अन्यथा वो अलग थलग पड़ जाएंगे और एक अलग ही संकट पूरे विश्व में गहरा जाएगा। दोस्तों इसके लिए जरूरी है तो इस बात की कि वो निष्कर्ष तौर पर एक WTO संगठन है, WTO विश्व व्यापार संगठन, वो कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच की जो मध्यस्थता करके उसको सरल किया जाए, ताकि अन्य देशों को, विकसित देशों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। और अंततः यदि विकसित देश समाधान नहीं निकाल पाते तो खामियाजा इन दोनों को देशों को भी भुगतना पड़ेगा, ये तय है। तो दोस्तों जरूरत है तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को सरल करने की, और खासकर नॉन टैरिफ बैरियर से ऊपर उठकर बात करने की, एक मंच पर बात करने की, ताकि सबका समाधान निकल सके और जो विकसित देशों के लिए गले की घंटी बना हुआ है वो भी कुछ सरल हो सके। दोस्तों ये था टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में, जो कि सुर्खियां बना हुआ है वर्तमान में। कभी तो टैरिफ की बात करता है ट्रंप, कभी करता है भारत। तो दोस्तों टैरिफ और नॉन टैरिफ शायद आपको नहीं पता था क्या है। दोस्तों यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए भी, यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और आपके जीके के लिए भी कि ये देश में क्या हो रहा है, क्या खेला खेला जा रहा है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ का, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, हमें जानने का अधिकार है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह टैरिफ और नॉन टैरिफ का ये द्वंद्व? तो दोस्तों इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। दोस्तों हम कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।